Hello everyone. The first question was, during terminal oxidation, the final electron acceptor of the electron transport chain is. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टोटल, 1 2 3 4. लास्ट जो एक्सेप्टर होता है जो पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो होती है फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को गेन करके वाटर फॉर्म कर लेती है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अगर केवल मेम्ब्रेन में पूछा जाता, इनर मेम्ब्रेन में, तो साइटोक्रोम A3 होता. सो द करेक्ट आंसर इज ए. Next question says, respiration is what kind of process? So it is a catabolic process which uses oxygen. So the answer will be D. It is not anabolic process. The large molecule glucose break down into smaller molecule like CO2 and water, and it is a catabolic process. Next question says, the second substrate level phosphorylation, SLP जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, दो प्लेसेस पर होता है टोटल. एक जब 1,3 बाई पीजीए 3 पीजीए बनता है, यहाँ फर्स्ट एसएलपी होता है. सेकंड होता है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जब पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड बनता है. तो यहाँ सेकंड पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. द आंसर फॉर थर्ड इज डी. Fourth question says, the energy is released during. None of the step have energy generating step, but pyruvate to acetyl-CoA. This is the link reaction. So link reaction में NaDH2 की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है. So correct answer will be D. The enzyme required for the Krebs cycle are located in. तो Krebs cycle की लोकेशन पूछी गई है indirectly. So Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट आ जाते हैं बाहर से ग्लाइकोलिसिस के बाद. यहाँ पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, द चेंजेस इनटू एसिटाइल कोए. तो यहाँ होती है क्रैब साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिंक रिएक्शन विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द लिंक रिएक्शन. NaDH2 बनता है, CO2 भी बनती है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटाइल कोए भी बनता है पायरुवेट से, बट ATP कहीं नहीं बनते. तो यही पूछा था क्या नहीं बनता. सो इट विड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ATP नहीं बनता, तो आंसर क्या होगा? डी. Seventh question says, dihydroxyacetone phosphate DH3P is rapidly and reversibly converted to, so it would be 3-phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate we can say. So the answer is A. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, DHAP और 3PGAL. DHAP को ब्रेक डाउन करने का मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में, so it is readily and reversibly converted into the glyceraldehyde 3-phosphate. So the answer will be A for 7th. Next question says, what is the most energy generating step of glycolysis? So in the glycolysis, ATPs are also formed as well as NADH2 is also formed. So NADH2 is formed during the conversion of 3-phosphoglyceraldehyde to 1,3 by PGA. This is the oxidation of 3-phosphoglyceraldehyde into 1,3 by PGA. So the correct answer will be B. That is oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 biphosphoglycerate. Next question, ninth question. A single molecule of glucose generate 2 molecules of the acetyl CoA. Because glycolysis के बाद ग्लूकोज जो है 2 पायरुवेट बनाता है. Each of the pyruvate changes into the acetyl CoA. Hence 2 acetyl CoA molecule from each pyruvate, because 2 pyruvate were synthesized. तो total 2 acetyl CoA बनते हैं. So the correct answer will be C. That is 2. Next question says that FAD is reduced in which of the reaction of the Krebs cycle? So FAD, when reduced, it get converted into FADH2. So this is the energy generating step when succinate changes into fumarate. The enzyme is succinate dehydrogenase. Dehydrogenase removes 2 hydrogen from the substrate succinate and form fumarate. So by oxidation of the succinate, the fumarate form, and the NAD is reduced into NADH2. So the correct answer will be succinate to fumarate. Next question says, which of the following is the complex 3 of ATS? So इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है उसमें होते हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1. So this is the correct answer, साइटोक्रोम BC1, because A3 ये फोर्थ होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 4 के बाद होता है. यानी करेक्ट आंसर जो है इसके लिए दैट इज ऑप्शन सी, साइटोक्रोम BC1. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस? तो इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की में, ये लोकेशन हमें पता होना चाहिए. ATP मोटर भी यही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यही होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ए विल बी द आंसर. विच इज नॉट अ कंपोनेंट हेड ऑफ ATP मोटर. ATP मोटर के दो पार्ट होते हैं, टेल प्लस हेड. तो हेड में बहुत से पार्ट होते हैं. रोटर पार्ट है लाइक अल्फा, बीटा, उसके अलावा डेल्टा, उसके अलावा एप्सिलॉन, ठीक है, और सिग्मा. नॉट सिग्मा, एप्सिलॉन होता है, डेल्टा होता है,
ठीक है, और गामा होता है, गामा। तो ये 5 पार्ट होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा। तो सिग्मा कोई भी पार्ट नहीं है। डेल्टा होता है हेड में, अल्फा भी होता है और एप्सिलॉन भी होता है, बट सिग्मा नहीं होता। तो यही हमारा आंसर होगा 13th के लिए बी। पूछा था कौन सा नहीं होता, तो सिग्मा नहीं होता। Amobarbital and rotionin are inhibitor of which complex of ETC? Moving on to the 14th question. So they are fish poison. They inhibit complex 1. Complex 1 को inhibit करते हैं. A will be the answer for 14th question. Fluoroideacetate is also inhibitor of Krebs cycle. So it inhibits the Krebs cycle at the cis aconitase step. जब citric acid आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, उस स्टेप पर सिस एकोनिटेट एंजाइम काम करता है, उसको ब्लॉक करता है फ्लोरोआइडोएसीटेट। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? पायरुवेट नहीं बनता, ग्लाइकोलिसिस में बनता है। आइसोसिट्रेट बनता है सीट्रेट से। सक्सिनेट भी बनता है सक्सिनाइल कोए से। तो ये दोनों तो बनते हैं, ए एंड बी भी नहीं होगा क्योंकि एक तो बनता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, क्योंकि ये नहीं बनता। पूछा गया था कौन सा नहीं बनता, तो पायरुवेट नहीं बनता, बिकॉज इट फॉर्म्स इन दी ग्लाइकोलिसिस। Moving on to the next question, 17th one. What the uncouplers do? Uncoupler क्या कहते हैं? ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनलिंक करते हैं, यानी प्रोटॉन्स तो जाते हैं बट वो प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स में नहीं जा पाते इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। तो क्या होगा? ईटीसी तो टेक्स प्लेस होगी बट इनहिबिट होगा फॉस्फोराइलेशन। तो आंसर होगा डी, 17th का आंसर डी। अनकपलिंग एजेंट भी होते हैं बहुत सारे, मैंने सेपरेट वीडियो में बताया भी हुआ, यू कैन सी अनकपलिंग एजेंट की वीडियो आप रेस्पिरेशन की वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कौन कौन से अनकपलिंग एजेंट है? साइनाइड भी है, सॉरी साइनाइड नहीं है, साइनाइड इनहिबिट करता है, साइनाइड इज नॉट अनकपलिंग एजेंट, दिस थिंग इज पार्डन। ये नहीं है। 2,4-DNP है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल एक अनकपलिंग एजेंट है। थर्मोजेनिन भी एक कॉमन अनकपलिंग एजेंट है। तो क्योंकि दोनों है बी और सी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। साइनाइड नहीं है अनकपलिंग एजेंट, साइनाइड इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। सो आंसर इज डी 18 के लिए। 19 में पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो करेक्ट सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सो आंसर इज बी, ये साइटोक्रोम्स का सीक्वेंस होता है। 20 में कहा है कि एचएमपी के फर्स्ट फेज के बाद क्या बनता है? एचएमपी में दो फेज होती है, एक ऑक्सीडेटिव फेज, एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी बनती है NADPH2, CO2 भी एलिमिनेट होती है, प्लस एक 5 कार्बन का कंपाउंड राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये भी बनता है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में केवल रीजनरेशन होता है कंपाउंड्स का। तो देखिए क्योंकि ऑक्सीडेटिव फेज के बाद ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। सो फॉर 20th द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। एचएमपी आप पढ़ सकते हैं रेस्पिरेशन की प्लेलिस्ट में जाके, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। 21 में कहा गया, ये भी एचएमपी से क्वेश्चन है, रीजनरेशन वाले स्टेप से, नॉन ऑक्सीडेटिव से। क्या होता है जब ट्रांसकीटोलेज जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन यूनिट्स को इरेथ्रोज पर भेज देगा, इरेथ्रोज फॉर फॉस्फेट पर। देखिए इरेथ्रोज में 4 कार्बन है, 2 कार्बन यूनिट यहां से आएंगे तो एक 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये 5 कार्बन वाले में से 2 कार्बन यूनिट चली गई तो ये 3 कार्बन का बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो दो चीजें बनती हैं, एक 3PGAL, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों चीजें बनेंगी। तो आंसर होगा बी एंड सी, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ये भी एचएमपी का स्टेप है, रीजनरेशन का स्टेप है, कैसे मॉलिक्यूल्स रीजनरेट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू पूछा गया है, अलग अलग का सबस्ट्रेट्स का अलग अलग आरक्यू होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, लिपिड्स का 0.75, प्रोटीन का 0.7, ऐसे ही ऑर्गेनिक एसिड्स का 1.33 होता है, यानी 22 का आंसर जो रहेगा सी रहेगा। बायोल्यूमिनेसेंस भी एक तरह का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है एक कंपाउंड का, लूसीफेरिन का, लूसीफेरेज एंजाइम होता है, इसकी वजह से ग्लोइंग या एक जो है फ्लोरेसेंस चमक निकलती है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ही है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही ब्रेक डाउन होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 एसेंशियल फैटी एसिड? तो लिनोलैनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ये दोनों ही फैटी एसिड हैं जो एसेंशियल हैं। ये ओमेगा 3 है लिनोलैनिक और ये ओमेगा 6 है। तो आंसर होगा 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन सी, पहला और दूसरा जो है फैटी एसिड है एसेंशियल। तो आंसर इज सी फॉर 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होते हैं एसिटाइल कोए, इनसे बनता है, जबकि ग्लिसरॉल के लिए DHAP होता था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ आंसर होगा 25 का बी। एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन का कंपाउंड है जिससे क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं। नेक्स्ट इन द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिलीजेस एसिटाइल कोए फ्रॉम द बीटा कीटो फैटी एसिड कोए। ये बीटा ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन लिया गया है। एक लंबा चौड़ा पाथवे होता है फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन के लिए। आप देखें वीडियो कैसे ब्रेकडाउन होता है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां फाइनली एक फैटी एसाइल बनता है जिसका नाम है बीटा कीटो फैटी एसाइल है। इसमें से एक एक करके एसिटाइल कोए यानी 2 कार्बन निकलते रहते हैं, फिर 2 कार्बन लेस फैटी एसाइल कोए बनेगा, फिर एसिटाइल कोए निकल जाएगा। इस तरह से 2-2 कार्बन कम होते जाते हैं और पूरा फैटी एसिड टूटता जाता है। तो यहाँ एक एंजाइम होता है थियोकाइनेज। जब आप पाथवे पढ़ेंगे यू कैन सी देयर इज एंजाइम, सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर 26 थियोकाइनेज। कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इनमें ये जो है एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसीलिए अच्छा होता है, अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड है वो केवल लिनोलिक है, बाकी सारे सैचुरेटेड है, ब्यूटरिक, लॉरिक या मिरिस्टिक एसिड। हालांकि है सारे वेजिटेबल ऑयल, प्लांट ऑयल, बट कैसे हैं, सैचुरेटेड है। केवल लिनोलिक एसिड अनसैचुरेटेड है, तो आंसर होगा हमारा 27 का डी। 28 की बात करें, फैट कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, तो फैट ब्रेक डाउन होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से। HMP से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, EMP से भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं दोनों को। EMP को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, HMP एक अलग पाथवे जिससे ग्लूकोज ही टूटता है। लिपोजेनेसिस से लिपिड बनते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बीटा ऑक्सीडेशन, कि फैट मेनली बीटा ऑक्सीडेशन से ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें भी फैटी एसिड कंपोनेंट। सो द आंसर विल बी बीटा ऑक्सीडेशन, दैट इज सी। Which of the following is not a lipid? वैक्स लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, फैट भी सिंपल लिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो डिराइव्ड लिपिड होते हैं लेकिन है लिपिड। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, तो आंसर जो होगा वो होगा सी, दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट अ लिपिड। नेक्स्ट वन इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड का एग्जांपल पूछा है, टर्पीन्स भी डिराइव्ड है, टर्पिनॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी डिराइव्ड है, कैरोटिनॉइड जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो भी डिराइव्ड है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। The next question says that the main enzyme in the biological nitrogen fixation is, we have discussed in this nitrogen metabolism portion that nitrogenase is the main enzyme. Nitrogenase एक एंजाइम होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं 1 and 2, आयरन और आयरन मोलिब्डेनम कंपोनेंट। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लेकर N2 को, डाई नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, किसमें, हाइड्रोजन प्रोवाइड करके अमोनिया में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, द आंसर इज ऑप्शन सी। The question 32 is very common. I have also discussed that in class. How many ATP molecules are required to fix dinitrogen into 1 molecule of ammonia? तो एक N2 को पूरा रिड्यूस करने के लिए 2 अमोनिया बनते हैं, 16 ATP लगते हैं। तो 2 अमोनिया बनते हैं 16 ATP से, एक अमोनिया बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 ATP से। तो 8 ATP चाहिए एक अमोनिया के लिए, 2 होते तो 16 ही होते, या पूरा N2 लिखा होता फिक्स करने के लिए तो भी 16 होते। सो यहाँ आंसर होगा 8, क्योंकि हाफ है। कौन सा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस पूरा नाम होता है। दिस इज द आंसर, ये बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग है, डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो राइजोबियम जो होता है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बाकी सारे फ्री लिविंग है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसा है, तो डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम एक डायमर है, एक कंपोनेंट आयरन कंपोनेंट, दूसरा आयरन मोलिब्डेनम कंपोनेंट। So 2 components are there. The enzyme itself is dimer, although component 1 is also a dimer and component 2 is a tetramer. But the enzyme nitrogenase combinedly is a dimer. 2 component होते हैं, component 1 और component 2. So answer will be B. Next question says that the glutamate and ammonia yield glutamine. देखिए ये रिडक्टिव अमीनेशन नहीं, ये कैटालिटिक अमीनेशन है। कैसे अमीनो एसिड बनते हैं ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सेपरेटली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर में जा सकते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। होता क्या है कि ग्लूटामेट खुद अमोनिया को बैलेंस करता है, एंजाइम होता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज, दिस वन। तो यहाँ ग्लूटामाइन बनती है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि ग्लूटामाइन बनती है। तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम होता है, फिर ग्लूटामाइन एक्सेप्ट करती है ऑर्गेनिक एसिड को और फिर 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट के बना लेती है, वहां एंजाइम होता है गोगैट। तो यहाँ पहला स्टेप का जो एंजाइम है दैट इज ग्लूटामाइन सिंथेटेज। कंफ्यूज ना हो, ग्लूटामेट सिंथेज जो है ये एंजाइम, क्योंकि ग्लूटामेट तो बन ही नहीं रहा,
तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। लैग हीमोग्लोबिन एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन का स्क्वेंजर है। सो दिस वन विद द आंसर। ये एनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखता है ताकि जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस हो सके। नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज कहाँ होते हैं, मैंने काफी बार बताया हुआ है। साइटोप्लाज्म में तो होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, और नाइट्राइट रिडक्टेज होता है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन ट्रांस एमिनेशन द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चेंजेस इनटू। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक कीटो एसिड है। जब ट्रांस एमिनेशन होता है तो इसको अमाइन ग्रुप मिलता है और ये 4 ही कार्बन का अमीनो एसिड एस्पार्टेट उसमें चेंज होता है। आंसर होगा एस्पार्टेट ए। When the nitrite and ammonium ions are converted directly into dinitrogen, the process is called। देखिए अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन बनता है तो ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, जबकि नाइट्राइट या अमोनिया अगर वापस डाइनाइट्रोजन बनते हैं तो ये कहलाता है एनामॉक्स, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। तो एनामॉक्स कहलाता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनामॉक्स बैक्टीरिया होते हैं। 14th का आंसर है ए।